गुड इवनिंग गाइस। आज आप शुरू करने जा रहे हैं टू डिमेंशनल जियोमेट्री। टू डिमेंशनल जियोमेट्री है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 3D ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2D ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ 2D ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ 2D ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ MCQs ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ। तो जी शुरू करते हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਬਸੀਸਾ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਅਬਸੀਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਬਸੀਸਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਰਡੀਨੇਟ। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਆਰਡੀਨੇਟ। ठीक है जी। एक्स एक्सिस वाले पॉइंट ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਅਬਸੀਸਾ। वाई एक्सिस वाले पॉइंट ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਆਰਡੀਨੇਟ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ एक्स एक्सिस ਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? एक्स एक्सिस ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਸੀਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ एक्स एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਬਸੀਸਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ वाई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ वाई एक्सिस ਉੱਪਰ ਹੈ, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ वाई एक्सिस ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਸੀਸਾ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਰਡੀਨੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਬਸੀਸਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਬਸੀਸਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x1 x2, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ x1 y1, ਇੱਧਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x2 y2। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ, ਆ Q ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? PQ, ਜਿਹਨੂੰ D ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਰੂਟ ਆਫ ਆ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x2 ਮਾਈਨਸ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ प्लस y ऑर्डिनेट y2 माइनस y1 ਦਾ ऑर्डिनेट y1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀ ਕਿਊ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ x1 y1 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x2 y2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? m ਰੇਸ਼ੋ n ਦੇ ਵਿੱਚ। m ਰੇਸ਼ੋ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ m, ਇਹਦਾ ਫਸਟ
ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ m ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ x2 ਨਾਲ m x2 ठीक है जी प्लस अगर इंटरनली है तो प्लस n ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ x ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਧਰ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਧਰ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਧਰ ਦਾ ਲੈਫਟ ਇਧਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇਧਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇਧਰ ਦਾ ਲੈਫਟ ਤਾਂ n x1 ठीक है जी डिवाइड बाय ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ m plus n ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਸਮ m plus n ठीक है फिर y ऑर्डिनेट ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਆਪਾਂ देखो y m ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ y2 ਨਾਲ m y2 फिर n y1 प्लस n y1 डिवाइड बाय में m प्लस n ਆਪਾਂ ਤਾਂ mn ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ m1 m2 ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ x1 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ y1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x2 y2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ डिवाइड हो गया m1 रेशो m2 रेशो ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਆਪਾਂ m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2 ठीक है जी y के में लभांगे फिर m1 y2 माइनस m2 y1 सॉरी प्लस m1 प्लस m2 ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ अगर इंटरनली डिवाइड करता है अगर ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ एक्सटर्नली ਦੀ एक्सटर्नली ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ देखो ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p q ਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ एक्सटर्नली मतलब ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x m1 x2 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ विचकार की आ जाएगा माइनस m2 x1 डिवाइड बाय में m1 माइनस m2 बस प्लस की जगह माइनस करना है तो y की आ जाएगा अपने को m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड बाय में m1 माइनस m2 ठीक है ये होंगे अपने को एक्सटर्नली ਲਈ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨਲੀ ठीक है जी अगर ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ए भी कोई लाइन है ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ x1 y1 x2 y2 ਤਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣਾ x1 plus x2 ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ प्लस ਇਹਦਾ डिवाइड बाय 2 फिर y1 plus y2 डिवाइड बाय में 2 ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ डिवाइड बाय 2 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ डिवाइड बाय ठीक है जी ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ क्लियर होगी गल इन्नी मूव करिए अगे हुण आपां गल करदे हां स्लोप दी स्लोप अपने कोल की हुंदा स्लोप नूं आपां जनरली लिख दिंदे हां dy by dx dy by dx नूं आपां की मान लैंदे हां स्लोप मान लैंदे हां जनरली इहदे विच अपने कोल स्लोप हुंदा dy by dx ਤਾਂ स्लोप नूं आपां लिख सकते हैं dy by dx is equal to m भी लिख सकते हैं ते इनू फिर लिख सकते हैं tan अल्फा ठीक है आ होंदा है dy by dx नूं m भी लिख सकते हैं m अपने कोले किहदे कोल हुंदा tan अल्फा अगर एंगल दी फॉर्म दे विच स्लोप नूं लिखना होवे तां m is equal to की हो जांदा अपने कोले tan अल्फा हो जांदा ठीक है जी हुण अगर अपने कोल एक लाइन है y is equal to mx plus c ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ m ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ dy by dx ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਪਲ m ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਹੀ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ y mx ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨ ਹੈ mx c ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ m ਹੋਏਗਾ m ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਸਲੋਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ फिर अगर अपने को लाइन है कोई ax ये तो पहले नंबर पर स्लोप फाइंड का करने का तरीका आ गया फिर दूसरे नंबर पर अगर अपने को लाइन है कोई ax plus by plus c इदा की कोई लाइन है तो इसका जो स्लोप होएगा वो होएगा अपने को माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ y ठीक है जी तो की आएगा कोफिशिएंट ऑफ x माइनस a डिवाइड बाय में b ठीक है माइनस तो ऑलरेडी रह के लेगा कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ y ये क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आप गल कर रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट सिंपली अगर ऐसे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी हो
ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਉਲਟਾ ਇਸ ਸਲੋਪ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਬਾਈ ਏ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਬਾਈ ਏ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਸਲੋਪ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੋ x1 y1 ਐਂਡ x2 y2 ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ m ਇਹ ਹੁੰਦਾ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਅਪੋਨ x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਤਰੀਕਾ। अगर अपने को दो पॉइंट हो तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ m1 is equal to m2 ਅਗਰ ਦੋ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਦੋ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਣ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ m1 is equal to m2 ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਲੋਪ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ m1 m2 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ -1 ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਲੋਪ ਕੱਢਾਂਗੇ m1 ਅਗਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ m2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ m1 ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਇਕੁਅਲ ਅਗਰ ਦੋ ਲਾਈਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ m1 m2 is equal to -1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਲੋਪ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਅਪੋਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਉਲਟਾ ਤੇ ਅਗਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਅਪੋਨ x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਅਗਰ ਦੋ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਤਾਂ m1 is equal to m2 ਸਲੋਪ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਦੋ ਲਾਈਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ m1 m2 is equal to -1 ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲੋਪ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ m ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ x1 y1 ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੋਪ ਦੇ ਰੱਖਿਆ m ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ x1 y1 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਲੋਪ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕਿਵੇਂ y ਮਾਈਨਸ y1 is equal to slope m x minus x1 ਸਿੰਪਲ ਐਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਲੋਪ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ m is equal to 2.23 find equation of line फिर स्लोप अपन 2 दे रखा है पॉइंट अपन 2 3 दे रखा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है पुट कर दो y माइनस y1 कितना अपने को 3 इज इक्वल टू स्लोप m 2 x माइनस x1 कितना 2 तो कितना आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 एनू अगर सॉल्व करना है तो y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो अपने को लिखी बन गई इक्वेशन बन गई ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2x ਮਾਈਨਸ y ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੋਪ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਲੋਪ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ
कोई 2 पॉइंट दिते हो, देखो आ पॉइंट है x1 y1 आ है x2 y2। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। x1 y1 ਐਂਡ x2 y2। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਲੋਪ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जिन्हें कितना दो पॉइंट पर स्लोप निकल जाएगी। फिर अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन की होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1। सिंपल बस अं आ जाएगी, आ पॉइंट आ जाएंगे y1 ਤੇ x1 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ m ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਲੋਪ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, y ਮਾਈਨਸ y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1 अपन इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये होगी अपने को 2.4। यानी कि अगर अपने को 2 पॉइंट गिवन हो तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन कितना फाइंड करा। क्लियर जी गल, एग्जांपल देख लीजिए। एक अगर अपने को 2 3 पॉइंट है, एक अपने को 5 6 पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन किवें फाइंड करांगे। देखो y माइनस y1 आ देखो आता x1 y1 x2 y2 x y माइनस y1 यानी कि 3 इज इक्वल टू x माइनस x1 2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਲੋਪ, ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ y2 ਮਾਈਨਸ y1, y2 ਕਿੰਨਾ 6 ਮਾਈਨਸ 3 अपॉन 5 माइनस 2 3। ये हो गया y माइनस 3, ये हो गया ऊपर 3 नीचे भी हो गया 3 x माइनस 2। तो 3 ਨਾਲ 3 कैंसिल, तो y ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ x माइनस y ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ प्लस ਦਾ इज इक्वल टू ये बन गई इक्वेशन 2 पॉइंट्स। क्लियर जी गल। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ इंटरसेक्शन फॉर्म। मिस्टेक हो गई शायद, इंटरसेक्ट इतने इंटरसेक्ट लिखना सी, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। देखते हैं आप की स्पेलिंग है, इंटरसेप्ट है जी, पी आना सी इतने इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है तो देखो अपने को ग्राफ होंगे एक्स वाई एक्सिस होंगी है। मान लो कोई लाइन इदा कट रही है, आ पॉइंट की होएगा A0 होएगा, आप शुरू च गल कर ली, आ होएगा अपने को 0। ठीक है, तो इस जी लाइन की आप इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तो की होएगी एक्स, एक्स का इंटरसेप्ट की है A प्लस वाई, वाई का इंटरसेप्ट की है V इज इक्वल टू 1। इनू बोलते हैं जी इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, जिथे ए की होंगे एक्स इंटरसेप्ट होंगे तो वाई की होंगे बी इंटरसेप्ट होंगे, 0 भी 0 ए 0। तो इदा तो जी आप क्वेश्चन फाइंड करते हैं उन्होंने बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी, इंटरसेप्ट फॉर्म पता लग जाएगा। अगर आप मान लो ये पूछ लिया जाए, सारा कुछ दे के पूछ लिया ए की होंगे तो ये अपने को एक्स इंटरसेप्ट होंगे, अगर बी पूछा जाए तो ये वाई इंटरसेप्ट होंगे। ठीक है जी, अगे गल करांगे सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म ये की होंगी अपने को, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਥੀਟਾ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x1 y1। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ cos ਥੀਟਾ, ਤੇ y ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ sin ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ x ਮਾਈਨਸ x1, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos ਥੀਟਾ। ਫਿਰ y ਮਾਈਨਸ y1 ਇਹਦੇ ਨਾਲ एंगल ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ sin थीटा, और इक्वल चुकी आ जाएगा r, यानी कि कोई कांस्टेंट आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, क्योंकि x एक्सिस नाल केड़ा एंगल बनदा है cos थीटा, y एक्सिस नाल केड़ा बनदा है sin थीटा, तो y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r, कोई कांस्टेंट आ जाए। तो इन्हों बोलते हैं जी सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म बेसिक जी गल्लां ने, बस एक बार क्लीयर हो जाए। फिर आप अगर गल करिए नॉर्मल फॉर्म की,
ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਅ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਆ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਥੀਟਾ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਗਰ ਪੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। अगर ओरिजिन तो कोई परपेंडिकुलर जा रहा है किसी लाइन ऊपर तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x, ਦੇਖੋ x ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? cos ਥੀਟਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। y ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? sin ਥੀਟਾ। ਤਾਂ x cos ਥੀਟਾ प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। p की अपने को जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, p की अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एग्जाम्पल लईए, अगर मान लो अपने को थीटा कितना दिता हो 60 डिग्री और p दिता हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है 5, तो फाइंड करो लोकेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की आ जाएगी फिर x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री इज इक्वल टू पी की है 5। एक गल हो ध्यान रखो, पी कदे भी नैगेटिव नहीं होना चाहिए। पी नैगेटिव नहीं होना चाहिए। ये ऑलवेज की होना चाहिए? ऑलवेज पी पॉजिटिव होना चाहिए। कितने भी अगर आपको इदा की क्वेश्चन दी हुई जिथे पी नैगेटिव होया तो सब तो पहला आप पी की करांगे? पॉजिटिव करांगे। तो पी अपना कदे भी नैगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस कदे भी नैगेटिव नहीं होती। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कदे भी नैगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये ऑलवेज की होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगे हम फाइंड कर लो cos 60। cos 60 कितना होएगा जी? cos 60 होएगा रूट 1/2 प्लस y sin 30 रूट 3/2 इज इक्वल टू 5। तो 2 एलसीएम तो आ जाएगा x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 10। ये आ जाएगी जी इक्वेशन। इदा के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते एग्जाम के नॉर्मल फॉर्म के कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਲਾਈਨਸ। ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ठीक है जी, देखो एक लाइन अगर अपने को है y1 y इज इक्वल टू m1 x प्लस c1। एक लाइन है अपने को y1 y2 ये कहना तो कह लो नहीं, y होंगे मोस्टली m2 x प्लस c2। अगर अपने को इदा की कोई लाइन आए दो y इज इक्वल टू m1 x प्लस c1 y इज इक्वल टू m2 x प्लस c2। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? m1। और इस लाइन का स्लोप की आ गया m2। तो फिर अपने को एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला होता एंगल फाइंड करने का, की होता वो tan थीटा इज इक्वल टू मोड के अंदर m1 माइनस m2। ठीक है जी, 1 प्लस m1 m2। ये होता जी अपने को एंगल फाइंड करने का तरीका। क्लियर? एक बार फिर तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो अगर आपने को लाइन दी है y इक्वल टू m1 x प्लस c1 y इक्वल टू m2 x प्लस c2, तो एंगल आप किवें फाइंड करांगे? दो लाइन विचकार टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएंगे तो लाइन की आ जाएंगे पैरेलल। इनकी देखो आ दोनों अगर इक्वल हो गए तो जीरो हो जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अगर m1 m2 की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। देखो अगर फिर इतने -1 पुट करेंगे तो नीचे जीरो हो जाएगा, इनफिनिटी हो जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा अपने को? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। इतने थीटा कितना? जीरो। अगर m1 m2 की हो जाएंगे इक्वल तो पैरेलल। अगर इदा की गल आ जाएगी जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो m1 m2 इज इक्वल टू। ठीक है जी, चलिए मूव करिए। हम गल करते हैं आप एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल किवें लभांगे? अगर अपने को कोई ट्राइंगल है ए बी
सी x1 पॉइंट y1 पॉइंट x2 y2 x3 y3 ठीक है जी। तो हम देखो एरिया आप किवें फाइंड करांगे। एरिया फाइंड करने वास्ते आप लगावांगे डिटरमिनेंट मैथड ताकि वो हो जाएगा 1/2 तो देखो एरिया चा नहीं आना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 ਤੇ 1 1 अपने कोलों लगा लवांगे ਆਪਾਂ 1 1 अपने कोलों लगा लवांगे फिर कर देवांगे डिटरमिनेंट जो भी आंसर आएगा वो अपना की आ जाएगा एरिया आ जाएगा ठीक है जी x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ਆਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ एरिया अगर अपने कोल की आ गया जी 0 आ गया अगर एरिया अपने कोल 0 आ गया तो ट्रायंगल बनेगी नहीं तो एक पॉइंट दूजा पॉइंट ते तीजा पॉइंट यानी कि ए बी सी ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो इन्हां नूं की बोलांगे आपां कोलिनियर ठीक है जी कोलिनियर अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाएगा तो उस पॉइंट्स नूं आपां की बोल देवांगे कोलिनियर बोल देवांगे अगर एरिया 0 नहीं आएगा तो वो पॉइंट किहड़े होंगे नॉन कोलिनियर अगर एरिया अपने को 0 आ जाएगा यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने तो बाद अगर 0 बनती हुई तो उन्होंने बोल देंगे कोलिनियर पॉइंट्स समझ लगी कंसैप्ट कोलिनियर दी ठीक है जी तब एक कोलिनियर पॉइंट किहड़े होंगे फिर ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲਿਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਾਂਗੇ सिंपल जा कंसैप्ट है टूडी का ज्यादा कोई दिक्कत वाली गल नहीं है चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम सारे इस बाद MCQs ही आने अपने को 15-16 MCQs करांगे आप ठीक है जी बेसिक सा कंसैप्ट है चलो देखते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स एक पॉइंट अपने को की है 5 - 12 और एक अपने को 9 - 9 तो हम आप डिस्टेंस फॉर्मूला किया PQ आ पॉइंट P मान लो आ पॉइंट Q मान लो ठीक है जी PQ या D भी बोल सकते हैं एक ही होंगे अपने को x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर ये होंगे अपने को हम आप इतने वैल्यू पुट कर देंगे सारी x2 कितना जी 9 - x1 कितना 5 इनका स्केयर प्लस y2 कितना -9 y1 कितना -12 तो एक -16 जगह हो जाएगा प्लस का 12 इनका भी स्केयर और ऊपर की पे अपने को रूट पे आई तो हो जाएगा 4 का स्केयर 16 प्लस ये हो जाएगा 3 का स्केयर 9 इनका कर देंगे रूट ये हो गया अपने को रूट 25 रूट 25 का रूट करांगे 5 तो डिस्टेंस अपने को कितनी आ गई जी 5 आ गई ठीक है इनका आप डिस्टेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करा क्लियर क्लियर हो गया जी सबनों क्वेश्चन नंबर 1 the distance of the point P23 from the x axis देखो आ वाला क्वेश्चन है ना ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹੀਏ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਗਰ ਬਣਾਓ ਆ x ਆ y ठीक है ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤਾ 2 3 ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ 2 3 ਹੁਣ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਤੇ y 0 हो जाएगा क्योंकि x ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਹੈ ਤੇ y ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਫਾਈਂਡ 2 - 2 का स्केयर प्लस 3 - 0 का स्केयर हो जाएगा 0 तो 0 ही हो गया आ बन जाएगा 3 का स्केयर ऊपर रूट नाल 3 कैंसिल आ गया 3 फिर ये तो अपने को आंसर आ गया 3 बी ऑप्शन ठीक है अगर मान लो अपन कितों कह देंगे वाई एक्सिस तो बोल देंगे फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस अपना इतने सी देखो वाई एक्सिस ते इतने पॉइंट की होना सी 0 3
तो फिर अपने को की आनी सी 3 - 3 0 हो जाता, तो डिस्टेंस आनी सी 2। तो यदा मतलब जी सीधी सीधी एक ट्रिक है अपने को, अगर अपने को एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस पूछी जाए तो वाई वाला कोऑर्डिनेट, अगर वाई तो पूछी जाए तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट। सिंपल, अपना टाइम बहुत बच जाएगा इस नाल। अगर अपन एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस पूछी जाए, एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस, तो हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट आंसर होगा। अगर अपन पूछी जाए वाई एक्सिस तो डिस्टेंस, तो हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो हम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ एक्स एक्सिस तो पूछी तो वाई वाला कोऑर्डिनेट ही आंसर आ गया, अगर आप वाई तो कड्डी तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट आंसर आ गया। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर आप डिस्टेंस फाइंड करनी हो एक्स एक्सिस तो वाई वाला कोऑर्डिनेट आंसर आएगा, यानी कि आ देखो अगला 2 3 है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस तो पूछ रखा है तो 3 आंसर आ जाएगा वाई वाला कोऑर्डिनेट। अगर इतने एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस होंदा तो फिर अपने को आ जाना सी आंसर 2 एक्स वाला कोऑर्डिनेट, 2 आंसर आ। ठीक है जी, क्लियर। ਆ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ करना जल्दी ਨਾਲ आंसर टाइप करो। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट देखते हैं सब तो पहला कौन आंसर टाइप करता है ਇਹਦਾ। दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ डिस्टेंस फाइंड करनी है जी, जल्दी ਨਾਲ रिप्लाई करो। देखते हैं सब तो पहला ਕਿਹਦਾ आंसर आता है। x2 - x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस y2 - y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ठीक क्यों पुट कर दो। स्पीडली करना तुसी। 4 - 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 0 - 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ये आ जाएगा 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ये आ जाएगा 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 9 + 16। ਇੰਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਨ। 4 ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਨ। विदाउट पेन किमें 4 - 1 कर दोगे सीधा इतों तो 9 हो जाएगा। अगर 0 - 4 कर दोगे तो 16 बना दोगे, तो रूट कर दोगे वो आ जाएगा 5। आंसर नंबर बी ऑप्शन आ। ठीक है जी, इदा करना तुम। वेरी वेरी इंपोर्टेंट MCQs। देखो आप पहला गल कर चुके हैं एक्स एक्सिस तो फाइंड करने की, वाई एक्सिस तो पिछले क्वेश्चन किया सी आपां डिस्टेंस आपां फाइंड की सी एक्स एक्सिस तो ते वाई एक्सिस। इत्थे आपां तिन्ने दी गल कर लांगे। कोई अपने को इत्थे अल्फा बीटा पॉइंट है जी, अल्फा बीटा आ पॉइंट है अपने को। ठीक है, अगर आपां इहदी डिस्टेंस फाइंड करनी होवे एक्स एक्सिस तो, एक्स एक्सिस तो आपां इहदी डिस्टेंस फाइंड करांगे तो सोडा आंसर आ जाएगा सीधा बीटा, वाई वाला कोऑर्डिनेट। अगर आपां फाइंड करनी होवे वाई एक्सिस तो सोडा आंसर आ जाएगा सीधा एक्स वाला कोऑर्डिनेट अल्फा। अगर फाइंड करनी हो ओरिजिन तो ओरिजिन की होंगे अपने को 0 0। हम आप इतों डिस्टेंस फाइंड करनी है जी, इतों आ पॉइंट की, तो फिर आप लगाना पऊगा डिस्टेंस फॉर्मूला। वो की होंगे अल्फा - 0 का स्केयर प्लस बीटा - 0 का स्केयर है, कि आ जाएगा अपने को अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का रूट। ऑप्शन नंबर आता रॉन्ग है, आ भी रॉन्ग है, ये रूट नहीं है, रूट ये होंगे तो यह आंसर बन जाना सी, आ भी नहीं होंगे तो अपने को आएगा आ वाला ऑप्शन, रूट ऑफ अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो। ठीक है जी, तीन प्रकार के आप MCQs कर चुके हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ते ओरिजिन। अगर किसी दो पॉइंट के विचकार भी डिस्टेंस कढनी हो तो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ पी। तो कोलिनियर पॉइंट किहड़े होणगे जिन्हां दा डिटरमिनेंट की होएगा 0। देखो कोलिनियर पॉइंट किहड़े होणगे जिन्हां दा डिटरमिनेंट की होएगा 0। तो आपां इन्हां दा डिटरमिनेंट कढ के 0 दे कोल रख दईए। तो कड्ढो जी डिटरमिनेंट, पुट करो -5 1 1 p 4 -2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 1 लगा ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਦੇ ट्रीट करांगे एरिया कि आप एरिया कट रहे हैं। 1/2 लगा लो, 1/2 अगर तुम लगाओगे ना 0 के रखोगे तो 1/2 तो उधर जाके 0 ही हो जाना। ठीक है, तो इन्हू लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसका करो डिटरमिनेंट सॉल्व, -5 ना किया तो पी ये हो गया, पी माइनस होंगे तो एक माइनस आ जाएगा +2। फिर करो -1, डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आती होना सानू। 1 1 की 1 की 1 -4 फिर +1 -2 -4p इज इक्वल टू 0। फिर कितना हो गया अपने को -5p
-10, -3 हो जाएगा तो ये हो गया +3, ये हो जाएगा -2, -4p। तो p वाले इकट्ठे कर लो, ये हो गए -9p, p वाले तो ये हो गया -10 -12 ते +9 -9 रह गया। अगर p दिया पाए तो वैल्यू देखांगे वो आ जाएगी -1। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D। ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विद वर्टिस। एरिया फाइंड करना है तो केड़े केड़े वर्टिस दे रखे ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ -5 7 -4 -5 ਤੇ 4 5। एरिया का अपने को फॉर्मूला की होंगे 1/2 डिटरमिनेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ -5 7 1 -4 5 -5 1 4 5 1। करो जी डिटरमिनेंट ਇਹਦਾ 1/2 तक अगे आना ही आना -5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ आएगा -5, ये हो जाएगा -5, फिर -7 -4 -4, फिर +1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ -20 +20। ठीक है जी। आता कैंसिल हो गए ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ -10 ਤੇ -50, -10 प्लस ਦਾ 50 हो गया ये ਆ हो गया -8 ਤੇ प्लस ਦਾ 56 102, ये हो गया 106, 106 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਕੱਟਿਆ 53। एरिया अपने को कितना आ गया 53। केड़ा ऑप्शन राइट है जी? सी ऑप्शन। ठीक है जी। इदा आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लाइन, कोई लाइन है अपने को आ लाइन है कि 3x + y - 9 = 0। डिवाइड द जॉइनिंग द पॉइंट 1 3। एक पॉइंट है अपने को 1 3, इधर क्यू पॉइंट अपने को 2 7। तो इन्हों किहड़ी रेशो च डिवाइड करेगी वो आप फाइंड करना। तो मान लो जी k रेशो 1 च इन्हों डिवाइड करेगी। ठीक है, k रेशो 1। तो आप इतने लगावे सैक्शन फॉर्मूला। तो लगा दो जी। x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा फिर 2k + 1 अपॉन k + 1। y कितना आ जाएगा 7k + 3 अपॉन k + 1। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋ 3x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2k + 1 अपॉन k + 1 प्लस 3 7k + 3 अपॉन k + 1 -9 = 0। तो एलसीएम ले लो k + 1 का, ये हो गया 6k + 3 7k + 3 -9k -9। ठीक है जी। एलसीएम लैता सी तो k + 1 उधर जाके 0 हो जाएगा। हम k वाले इकट्ठे कर दो 6 ते 7 13 -9 4k 4k ए हो जाएगा 3 ते 3 6 6 -9 माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो k कितना आ गया जी 3/4। तो केड़ी रेशो लैती सी अपना k रेशो 1 पुट कर दो 3 4 रेशो 1 तो कितना आ गया 3 रेशो 4 है जी। ऑप्शन 3 रेशो 4। हाँ ऑप्शन नंबर ए। देखो आ भी ऑप्शन पई है 4 रेशो 3। ये दोनों इतने बरीकी नाल काम करना आप ए ऑप्शन भी आप लगा सकते हैं बाई चांस गलती ना तो इदा नहीं करना क्योंकि 3 4 ਤੇ 4 3 ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत डिफरेंस है। तो आप इतने ध्यान नाल करना है कि केड़ी अपनी रेशो आएगी। तो 3 4 अपना आंसर है नंबर ए। क्वेश्चन 7, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आप किवें फाइंड करते हैं? देखो आप करी सी गल अगर x1 x2 x1 y1 और x2 y2 पॉइंट ने तो मिड पॉइंट की होंगे अपने को x1 + x2 डिवाइड बाय 2 y1 + y2 डिवाइड बाय 2 आ होंगे जी मिड पॉइंट। इतने आ कोऑर्डिनेट दोनों आ जाएंगे मिड पॉइंट। उन्होंने की किया आपको कहता A34 इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। देखो कोई दो पॉइंट जॉइन हो रहे हैं केड़े केड़े, एक तो P पॉइंट है -65, एक R पॉइंट है इधर
किते जे -2 3 ठीक है। इन्हां दा जिहड़ा मिड पॉइंट है वो हैगा a/3, 4 ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ -6 -2 अपॉन 2 ठीक है। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ए किहदे कोल आएगा इस दे कोल आ जाएगा a/3 तो बस अगला करने की तो जरूरत ही नहीं आपको आप ए की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है। ए दी मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई ए ना ही करो चलो ये कट्टे जाएगा -8 डिवाइड बाई 2 -4 इज इक्वल टू a/3 तो ए की वैल्यू कितनी आ गई जी इतों -12 ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आ वाला हम आपको करने की जरूरत नहीं दूसरा मिड पॉइंट क्योंकि आपको तो सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए अगर वैसे आप मिड पॉइंट फाइंड करने होंगे फिर आपको दोनों करने पैने सी बट आप ए की वैल्यू फाइंड करनी ए की वैल्यू आपको इसे तो ही निकल रही है तो आप दूसरा छेड़ते नहीं आप टाइम बचाना है अपना जितना हो सके ठीक है जी। इदा आप फाइंड कर सकते हैं ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कितनी आ गई -12 इतने देखो एक 12 भी ऑप्शन च है तो माइनस प्लस की मिसटेक्स बहुत मरवादियाँ आपको तो उन्होंने तो बचना है ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दो पॉइंट ने कोई x -1 3 2 इन्हों के विचकार की जी डिस्टेंस है पूरी वो अपन 5 दे रखी है तो फाइंड करो x आप फाइंड करना है जी तो देखो लगा दो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला की होंगे x2 3 माइनस x का स्केयर प्लस 2 ये हो जाएगा +1 10 स्केयर एक किदे को 5 तो रूट उधर जाके स्केयर हो जाएगा ये बन जाएगा 3 द स्केयर प्लस x स्केयर माइनस 6x 3 का स्केयर हो जाएगा 9 तो रूट उधर जाके स्केयर बन जाएगा ये हो जाएगा 25 x स्केयर 9 9 18 -6 और 25 इधर आ जाएगा तो ये रह जाएगा 7 माइनस तो रूट बना लो जी कि आएंगे रूट आ जाएंगे x -7 x +1 x की वैल्यू कितनी आ गई एक 7 आ गई एक -1 आ गई है जी ऑप्शन 7 -1 डी ऑप्शन 7 -1 x की वैल्यू ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 द पॉइंट्स आप पॉइंट्स दसने हैं वर्टिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कोलिनियर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल नन ऑफ दिस ठीक है जी। तो हम सब तो पहला देखो ये एक ऑप्शन पे अपने को कोलिनियर केड़ा ऑप्शन पे है कोलिनियर अगर अपने को ये पॉइंट क्लीनियर ही हो गए अगर अपना ऑप्शन अपन चेक करांगे अगर क्लीनियर ही हो गया तो अपना ऑप्शन ये आ जाएगा क्लीनियर अगर मान लो ये पॉइंट क्लीनियर ना आए तो ही ट्रायंगल बनेगी फिर आप ट्रायंगल से चलांगे फिर आप देखा कि ट्रायंगल बन रही है तो देखो आ कोई पॉइंट ने 1 1 -2 7 3 -3 ठीक है जी। तो इनू हम फाइंड कर लो 1 1 1 -2 7 1 3 -3 1 ठीक है डिटरमिनेंट फाइंड करो 1 नाल कीता 7 + 3 -1 -2 -3 +1 6 -21 ये हो गया 10 ये हो गया 3 ते 2 -5 + 5 ये हो गया -15 तो 15 -15 एक ही आ गया 0 0 आ गया था मतलब एक पॉइंट किड़े हो गए कोलिनियर हो गए तो आप ट्रायंगल चक्कन की लोड़ ही नहीं पई ठीक है जी। तो अपना ऑप्शन आ गया बी अगर बाई चांस कोलिनियर ना आते नॉन कोलिनियर होंगे फिर आप किदा चेक करते या फिर अगर आप ये मैथड लगाना ही नहीं तो फिर आप की करांगे जी देखो आ ए बी सी आ पॉइंट ने तो आप ए बी की डिस्टेंस कढ़ांगे वो कोई ना कोई आएगी ए सी कढ़ांगे तो बी सी कढ़ांगे तो फिर देखा इक्विलेटर ट्रायंगल के होनी चाहिए तीनों डिस्टेंस इक्वल होनिया तो इक्विलेटर बोल देंगे कोलिनियर की होएगा कोलिनियर किसी एक साइड का जोड़ा सम है वो किसी दो साइड के सम के इक्वल होएगा ए सी प्लस बी सी इदा होया तो कोलिनियर हो जाएंगे अगर तीनों साइड ए बी ए सी बी सी तो वो हो जाएंगे इक्विलेटर दे अगर इदा हो गया तो वो अगर आइसोसेलेस होगी
तो फिर कोई दो साइड इक्वल हो जाएंगे। अगर कोई दो साइड इक्वल होगा तो ਉਹਨੂੰ बोलांगे आइसोस्केलस। अगर फिर कोई भी ना होया तो नन ऑफ दिस। तो फिर आप इदा फाइंड कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड भी एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अगर अपने कोई ट्रायंगल है x1 x2 सॉरी y1 नहीं आएगा ना भाग x2 y2 x3 y3 सेंट्रोइड कितने च होंगे किसी भी ट्रायंगल का ਜਿਹੜਾ ਆ वाला पॉइंट ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं सेंट्रोइड जी ਇਹਨੂੰ जी ਨਾਲ डिनोट ਕਰਦੇ हैं ਇਹਨੂੰ बोलते हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड अपने कोल ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ मिड पॉइंट ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤਾਂ x1 plus x2 plus x3 डिवाइड बाय 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3 ਇਹਨੂੰ बोलते हैं जी सेंट्रोइड। ठीक है फाइंड कर दो इन्हों तो सेंट्रोइड फाइंड करना था 0 प्लस 8 प्लस 8 डिवाइड बाय 3 फिर दूसरा 6 प्लस 12 प्लस 0 डिवाइड बाय 3 तो ये हो गया 16 बाय 3 ये हो गया 18 डिवाइड बाय 3 6 और 16 बटे 3 तो 6 फिर ऑप्शन है जी डी ऑप्शन इदा आप सेंट्रोइड फाइंड कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दो वर्टिस दे रखे हैं ते एक सेंट्रोइड दे रखे हैं तो थर्ड वर्टेक्स फाइंड करनी है। लगा दो जी सेंट्रोइड का फॉर्मूला 3 प्लस माइनस का 7 ते तीजी आप फाइंड करना कोऑर्डिनेट उन्होंने लिख लो x3 डिवाइड बाय में 3 ये पहले सेंट्रोइड के इक्वल आ जाएगा यानी कि 2 के इक्वल आ जाएगा। फिर दूसरा -5 प्लस 4 y3 डिवाइड बाय में 3 होंगे ये दूसरे सेंट्रोइड के पॉइंट के इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 3 - 7 प्लस x3 इज इक्वल टू हो गया 6 तो x3 कितना आ गया जी -4 प्लस ए हो गया 10 इधरों फाइंड कर लो -1 प्लस y3 इज इक्वल टू -3 तो y3 कितना आ गया जी -2 तो पॉइंट आ गए किड़े किड़े 10 माइनस and -2 option number C. Question number 12. If the point P, B, C are collinear then अगर ये collinear ने तो केड़ी कंडीशन होएगी तो collinear ने तो डिटरमिनेंट च पा दो इन्हां नूं 1 2 1 0 0 1 A B 1 ठीक है जी ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट रख दो किदे इक्वल 0 अब 1 नाल करो सॉल्व 0 माइनस था भी फिर 2 नाल करो सॉल्व -2 इतना करांगे तो 0 माइनस था ए फिर करो 1 नाल सॉल्व 1 नाल कीता b 0 0 ये तो 0 ही होगी सारी 0 इक्वल टू 0 इत्थों की आ गया -b इत्थों की आ गया प्लस दा 2a इज इक्वल टू 0 ता 2a इज इक्वल टू कितना आ गया b यदि कंडीशन है 2a is equal to b ऑप्शन नंबर ए राइट 2a is equal to b। क्वेश्चन नंबर 13 a man walked near a wall such that the distance between him and the wall is 10 unit। ठीक है कोई मैन है वो किसी दीवार वाले चल रहा है such that the distance between him and the wall is 10 unit उस मैन दे ते जिहड़ी दीवार है वॉल दे विचकार कितनी डिस्टेंस है 10 यूनिट कंसीडर द वॉल टू बी द वाई एक्सिस जिहड़ी वॉल है वो किहड़ी है वाई एक्सिस है मतलब जिहड़ी दीवार है वाई एक्सिस है इस नूं उहने दीवार मान रखा ठीक है तो द पास ट्रैवल्ड बाय द मैन इस दीवार तो कितनी दूर है 10 यूनिट 10 यूनिट दूर है कि इत्थे किते मैन खड़ा है 10 यूनिट ठीक है जी तो फिर कितनी दूर है वो ये डिस्टेंस का दी हम ये डिस्टेंस अपने कोल हैगी है x दी ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 कितना ट्रैवल कर गया हो x वाले ट्रैवल कर गया कितना 10 यूनिट x वाले ट्रैवल कर गया ठीक है अगर दीवार y है तो ट्रैवल कर रहा है x वाल तो कितनी 10 यूनिट नाल तो x इज इक्वल टू 10।
ठीक है जी। इदां दे MCQs ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਥ ਉਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 10 ਯੂਨਿਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ x = 10। Question number 14. The slope of the line is 1 by the value of a। ਤਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ 12/3, ਇੱਕ 4a। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, m ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 1/। ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to m ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ a minus 3 4 minus 12 is equal to 1/8। ਤਾਂ a minus 3 आ जाएगा -8, उधर चल जाएगा -8 upon 8, तो यह हो गया -1। a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 + 3 is equal to 2। a की वैल्यू 2 आ गई, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਲੋਪ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Question number 15. The slope of the line which is perpendicular to a line joining the point। अच्छा, perpendicular ਦੀ slope ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, 0 0 -8 0 और -8 8। ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਕੱਢੋ ਸਿੰਪਲ, ਸਲੋਪ ਆਫ ਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ, ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, y2 minus y1 upon x2 minus x1। ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ y2 ਕਿੰਨਾ 8 -0 -8 -0, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਸਲੋਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਦੀ, ਸਲੋਪ ਆਫ ਨੋਰਮਲ। ਸਲੋਪ ਆਫ ਨੋਰਮਲ, ਸਲੋਪ ਆਫ ਨੋਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਆਪਣੀ, ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਮਾਈਨਸ, उल्टा करे तो -1 नहीं आ जाएगा, तो 1। उल्टा करके नेगेटिव करना होता तो 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई 1। तो कई बच्चे इतने कन्फ्यूज होंगे, वो -1 ही लगा देंगे और सीधी स्लोप फाइंड कर देंगे, उन्होंने आंसर आ जाएगा -1। उन्होंने ऑप्शन ए ही दे रखी है, उन्होंने आ की दे रखा आपां नूं लालच, लालच दे रखा बस आप जल्दबाजी च स्लोप फाइंड करांगे तो -1 देखते ही ऑप्शन लगा देगा, बट उन्होंने अपनी स्लोप पूछी की दी है परपेंडिकुलर। Question number 16. If A is point on the y-axis, whose ordinate is 8। कोई A point है y-axis ते, ओदा point कितना 8, तो मतलब ये हो जाएगा 0 8। ठीक है जी, ये A point है। And B is a point on the x-axis, B कोई point है x-axis ऊपर ते ओदा हिस्सा कितना 5, तो ये हो जाएगा अपने को 5 0। Then the equation of the line AB, ता इस लाइन में आप मिला देता, ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, y -y1 y2 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ y2 y1 x2 x1 अपॉन इनटू में x -x। ठीक है जी, ਤਾਂ लगा दो y -8, पहला पॉइंट आ मन्निया जाएगा हम a वाला। ठीक है, y -y1 y2 कितना जी 0 -8 अपॉन 5 -0 x -0। तो y -8 एक ना आ गया -8 अपॉन 5 x आ गया, ये हो गया 5y -40 इज इक्वल टू -8x। तो इन्हें इधर ले आवांगे 8x प्लस 5y -40, 8x प्लस 5y is equal to 40। ऑप्शन नंबर ए राइट। इदा आप इक्वेशन फाइंड कर सकते। क्लास इज ओवर। अज बेसिक गल्लां सीगियां अपने कोल टूडी दियां, ज़्यादा आप डीपली कंसैप्ट अज नहीं लैके गए। कल की क्लास के विच आपां होर डीप जावांगे, इहदे विच स्टडी करांगे ज़्यादा, जिन्ना भी इहदा अपने कोल कंसैप्ट होया 2D का डीपली तो डीपली आपां करन दी कोशिश करांगे। अज बेसिक्स दी गल्लां सी, स्लोप कड्ढना सीखिया आपां, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन बनाउणी सीखी,
2 पॉइंट तो 1 पॉइंट तो ठीक है जी। डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, सैक्शन फॉर्मूला देखा, जिन्ने भी बेसिक ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।